તો ટોપ ન્યૂઝમાં સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે પંજાબની મુલાકાતે છે, ત્યારે તેમનો કાફલાને રસ્તામાં રોકવામાં આવી રહ્યો છે। પીએમ મોદીની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક જોવા મળી રહી છે। પીએમ નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પંજાબના પ્રવાસે છે, ત્યારે પીએમનો કાફલો 15 મિનિટ સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાયો છે। મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે, જે અંતર્ગત પીએમ મોદીનો કાફલો ભટિંડાથી જ્યારે પરત ફરી રહ્યા હતા તે રસ્તામાં ત્યારે 15 મિનિટ સુધી તેમના કાફલાને રોકવામાં આવી રહ્યો છે અને પંજાબ સરકાર પાસે રિપોર્ટ પણ માંગવામાં આવી રહ્યો છે। જે રીતે આજે નરેન્દ્ર મોદી પંજાબના પ્રવાસે છે, આજે તેઓ જે અંતર્ગત તેમનો કાફલો જે છે તેને 15 મિનિટ સુધી રોકવામાં આવી રહ્યો છે અને પીએમ મોદીની સુરક્ષામાં ક્યાંક ને ક્યાંક મોટી ચૂક જોવા મળી રહી છે। જે અંતર્ગત પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો કાફલો 15 મિનિટ સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાયો છે અને પીએમ મોદી જ્યારે પંજાબના પ્રવાસે છે, આજે પંજાબની જનતાને 40,000 કરોડના કામોની જ્યારે ભેટ આપવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે પીએમ મોદીની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક જોવા મળી રહી છે। પીએમ મોદીનો કાફલો 15 મિનિટ સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાઈ ગયો છે। જે અંતર્ગત વાત કરવામાં આવે તો પીએમ મોદી જ્યારે ભટિંડાથી પરત ફરી રહ્યા હતા, જે દરમિયાન રસ્તામાં તેમને ટ્રાફિક નડ્યો છે અને ટ્રાફિકમાં 15 મિનિટ સુધી પીએમનો કાફલો જે ફસાઈ ગયો છે અને પંજાબ સરકાર પાસે જે અંતર્ગત રિપોર્ટ પણ માંગવામાં આવ્યો છે। આ સાથે જવાબદાર ઓફિસરો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવા પણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। જે પણ જવાબદાર અધિકારીઓ હશે તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવા પણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। તો જેવી રીતે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક જોવા મળી રહી છે। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો કાફલો 15 મિનિટ ટ્રાફિકમાં ફસાયો છે। આજે નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પંજાબમાં પ્રવાસે છે, ત્યારે સુરક્ષાના કારણે જે રેલી રદ થઈ હતી, ત્યારબાદ પીએમ મોદી ભટિંડાથી જ જ્યારે પરત ફરી રહ્યા હતા તે સમયે પંજાબ સરકાર સામે કહી શકાય કે સરકાર પાસે આ અંગેનો રિપોર્ટ પણ માંગવામાં આવી રહ્યો છે। ટ્રાફિકમાં 15 મિનિટ સુધી પીએમ મોદીનો કાફલો ફસાઈ ગયો છે, જે અંતર્ગત રિપોર્ટ પણ મંગાયો છે અને જવાબદાર ઓફિસરો સામે કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે। પીએમ મોદી જ્યારે પંજાબના પ્રવાસે છે, ત્યારે તેમની કાફલામાં 15 મિનિટ સુધી તેમને ટ્રાફિકમાં રોકવામાં આવી રહ્યા છે। આ બાબતે राकेश शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े गए थे। जी राकेश जी, सबसे पहले बुलेटिन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर है, तब उनका जो काफिला था ट्रैफिक में 15 मिनट तक उनको रोका गया है। यह विषय बहुत ही खेद का विषय है और इसमें पूरी तरह से चूक है। चाहे हम बात करें पंजाब पुलिस की, चाहे सेंट्रल एजेंसी, हमारी खुफिया एजेंसी, क्या उनको नहीं पता था इस तरह से पंजाब में होने वाला है और प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था? तो इससे बड़ी चूक नहीं हो सकती। चाहे हम बात करें पंजाब की खुफिया एजेंसी हो, पंजाब पुलिस की हो, सेंट्रल एजेंसी, एसपी जी क्या कर रहे हैं लोग? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। और पंजाब का जो माहौल था, जो किसान आंदोलन के कारण, चलो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक है और सोचने का विषय है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। मैं खुद भी देख रहा था न्यूज चैनल पे कि गाड़ी पीछे भी नहीं घूम सकती है। पूरी तरह से वेल प्लान्ड सारा किया गया। क्या हमारी खुफिया एजेंसी सो रही है? जी राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब जो किसान आंदोलन अभी खत्म ही हुआ है, किसान आंदोलन के जो भी 3 कानून थे वो वापस ले लिए है सरकार ने, उसके बाद नरेंद्र मोदी का पहली बार वो पंजाब गए थे, उसी समय ऐसा हो रहा है कि ट्रैफिक में 15 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री ऐसे ट्रैफिक में रहे। क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं वही कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी की चूक है
और उनकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री की जहां रैली हो रही है, जहां जाना है, जिस स्थान पे जाना है, पूरी आने जाने के रास्ते की पूरी क्लियरेंस चाहिए, वहां बीच में कहीं रुकावट नहीं चाहिए। और इन चीजों पे पंजाब सरकार की भी जिम्मेदारी, क्योंकि प्रधानमंत्री पंजाब में आ रहे थे। पंजाब सरकार कहां सो रही है? जी राकेश जी, हमारे साथ जुड़े आप हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव जुड़ गए। जी प्रणव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज जो पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब गया था, पंजाब में वो उनकी रैली थी, उसके बाद तभी इनका जो काफिला था उनको 15 मिनट तक ट्रैफिक में फंस गया है, क्या कहेंगे? हेलो जी प्रणव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी प्रणव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी पंजाब में थे, पंजाब में उनकी रैली थी, लेकिन उससे पहले रैली जा रहे थे, उससे पहले बीच में रास्ते में ही उनको ट्रैफिक में रुका गया था। 15 मिनट का देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का काफिला 15 मिनट का ट्रैफिक में रुका गया था, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज पंजाब की तरफ आज इन्होंने रुख किया है। आज इनको पंजाब क्या तब आई है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। दूसरी बात, अब देखिए आज इनको 15 मिनट क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि वहां पर किसानों ने कई जथेबंदियां ऐसी थी जिन्होंने रास्ते में उनका विरोध किया, उनको काले झंडे दिखाए। मैं उन झंडों की बात कर रहा हूँ। एक झंडे वो थे जो आजादी के समय दिखाए गए थे, साइमन गो बैक। और आज इन काले अंग्रेजों को, जो मैं काले अंग्रेज इसलिए कहूंगा जिनके मन काले हैं, तो वो काले अंग्रेजों के बराबर हुए। तो आज उनको काले झंडे दिखाकर हमारे किसानों ने वहां से वापस जाने के लिए कहा। आज मोदी जी वापस नहीं गए हैं, उनको वापस भेजा गया है। और ये भेजने का जो आज विचार है, जो आज ये अनुमान है कि पंजाब के लोगों ने, हमारे अन्नदाता किसान ने किया है। किसान ने अपनी शक्ति दिखाई है कि जिसने अन्नदाता को आज तक एक पैसे का भी, उनको मैं कहूँ तो इज्जत नहीं दी, उनको उनका अपमान किया। आज लेकिन प्रणव जी, जो भी किसानों को जो भी थी उनको 3 कायदे से मतलब था, लेकिन सरकार ने तो वो 3 कानून वापस ले लिए, उसके बाद भी किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे कि एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जिसका अभी तक पूर्ण तरीके से हल नहीं निकाला गया है। किसानों की मांग एमएसपी को लेकर भी थी। आज देखिए, आज चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब की तरफ मुंह कर लेते हैं। 42,000 करोड़ के जिलों की बात की जाती है। अरे भैया, आपका तो इतिहास रहा है, आपने इस देश के लोगों को दिया गया है सिर्फ जुमले। पहले बोला 15 लाख विदेशों से, काला धन विदेशों से लाएंगे, 15-15 लाख लोगों के अकाउंटों में आएगा। फिर बोला कि बुलेट ट्रेन चलेगी। चल पड़ी है क्या बुलेट ट्रेन? आप मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। आज 2 करोड़ नौकरी की जो बातें करते थे रोजगार देने की, उल्टा 10 करोड़ रोजगार छीन लिया जाता है। ये हमारे देश का हालात है, अर्थव्यवस्था पतली हो चुकी है। इसी तरीके से, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज ये मोदी जी वापिस नहीं गए हैं, पंजाब के लोगों ने उनको वापिस भेजा है कि भैया नहीं चाहिए आपकी झूठों की जुमलेबाजी। अरे भैया नहीं चाहिए आपका वो झूठा एजेंडा विकास का। पंजाब के लोगों ने भाजपा को नकारा है। जी प्रणव जी, मैं आपसे वही पूछना चाहूंगी कि देश के बड़ा प्रधान ने सबके सामने आकर उन्होंने माफी मांगी है, जो भी 3 कानून थे वो वापस ले लिए, माफी भी मांगी है किसानों से, और क्या चाहते हैं किसान? देखिए, बात सीधी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफी नहीं मांगी, उनको घुटनों के बल आकर झुकना पड़ा है, क्योंकि किसानों ने जिस शीघ्र तरीके से अपने आंदोलन को चलाया, और प्रत्येक व्यक्ति, आज इस देश की मैं बात करूं, हर इंसान ने उस आंदोलन में अपना योगदान दिया है। अरे अब ये बताइए, 750 किसान शहीद हो गया, उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोले नहीं। क्या पंजाब की चनी सरकार, जिसने तकरीबन 400 परिवारों को सरकारी नौकरी दी, 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी जी उन 750 किसान जिनके परिवार आज वित्तीय मदद चाहते हैं, जो आज जिस कारण के घर के परिवार जीवन को छोड़ के चले गए, इस दुनिया से अगर वो चले गए, तो उनका उन्होंने क्या बोला? एक श्रद्धांजलि के शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जी प्रणव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो किसान द्वारा जो झंडे दिखाकर प्रधानमंत्री को रोक दिया गया है, क्या वो प्री प्लान था या फिर सुरक्षा में चूक हुई है? जी प्रणव जी, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी कि आपने बताया उस तरह से जब पीएम का काफिला जो जा रहा था रोड पर से, किसानों ने झंडे दिखाकर उनका काफिला रोक दिया गया था, उनकी वजह से 15 मिनट तक वो काफिला रुका। तो क्या ये प्री प्लान था या फिर सुरक्षा में चूक हुई है?
देखिए, जब जब कोई लोकतंत्र का खिलवाड़ करता है, जब जब कोई लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करता है, वो भूल जाता है कि इस देश में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पर हर इंसान को अपनी आवाज उठाने का हक है। आज वही आवाज ने, आज जो वही मैं बोलूंगा उसी हक ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी को बैक मोदी का नारा देकर वापस भेजा है। आज मोदी जी जो वापस गए हैं, आज पंजाबियों ने दिखाया है कि मोदी जी झूठे ही बातें मत कीजिए, एजेंडे पे आइए, पंजाब की बात कीजिए, इस देश की बात कीजिए। इस देश को कैसे संवारेंगे आप? झूठ से काम नहीं। जी प्रणव जी, मैं आपसे वही पूछना चाहूंगी कि सरकार की जो बात कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रजोग संबोधन में कहा था, सबके सामने माफी मांगी थी, ये 3 कानून वापस ले लिए थे। पंजाब के किसान के अगर सरकार तो झुक गई है, सरकार ने एक कदम किसान की ओर बढ़ाया था, तो क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब के किसानों को भी पीएम और देश के लिए एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, आप बताइए कितनी बार कदम बढ़ाएंगे किसान? क्योंकि कब तक इस बात को खींचते रहेंगे? मैं आ रहा हूँ, ये तो कोई मसला है नहीं। मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। अरे भैया, किसान तो 11 मीटिंगों पे आपने किसानों को बुलाया, 32 जथेबंदियों के नुमाइंदे वहाँ पहुंचे। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी 2 मिनट आए, उठ के 1-1 घंटा उस मीटिंग में दोबारा वापस नहीं आए। चलिए, अब मैं बीती बातों को ना करके आज वर्तमान के हालात पर आता हूँ। अगर आप कहते हैं किसानों ने अपना आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? क्या एमएसपी पे कोई कानून बना? कोई नोटिफिकेशन आया है? सिर्फ बातें की गई हैं, सिर्फ दावे किए गए हैं, और दावे और बातें बिल्कुल खोखली हैं। जी प्रणव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। जी राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रणव जी ने बताया, उस तरह से किसानों द्वारा जो ब्लैक फ्लैग दिखा के प्रधानमंत्री के काफिले को 15 मिनट तक रोका गया था, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? क्योंकि किसानों का जो भी मसला था वो सॉल्व कर दिया है, सरकार ने सबके सामने आकर माफी मांगी है, 3 कानून भी वापस ले ली है, फिर भी किसान अभी तक ऐसे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी बताया हूं कि एक सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है। प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां सुरक्षा प्रदान करे। वहां खुफिया विभाग क्या कर रही थी? अगर इस तरह का आंदोलन होना था, केंद्र सरकार का अपना तंत्र है। हम बात करें, प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा दी हुई है, हमारा आईबी है, हमारा अपना सारा खुफिया तंत्र है। उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री का काफिला रुकता है या प्री प्लान्ड है, वहां पे कुछ भी हो सकता था। एक देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह होना बहुत ही दुखदायक घटना है और यह नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसमें पंजाब सरकार के साथ साथ पुलिस महकमे को, खुफिया विभाग को जिम्मेदार ठहराऊंगा। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं वो क्या कर रहे हैं? जी राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो प्रणव जी, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि पीएम की पद की कोई गरिमा होती है? पीएम के सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वो जिस भी स्टेट में जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की उसकी जिम्मेदारी होती है, और उसके अलावा भी पीएम पद की जो गरिमा होती है, इस तरह से उनका काफिला रोकने के लिए मतलब कितना योग्य? आप मुझे ये बताइए, ये योग्य की बात करते हैं, ये गरिमा की बात करते हैं। आज गरिमा की हदों को पार किसने किया? आज गरिमा की हदों को पार एनडीए सरकार ने किया। अरे भैया, वो गरिमा तब कहाँ थी जब 750 किसान शहीद हो गया? आज के उनके परिवारों पे, उनकी बच्चों पे, उनकी बुजुर्ग माताओं पे, उनकी बीवियों पे, उनकी बेटियों पे तरस नहीं आया? तब ये गरिमा कहाँ चली गई थी? चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए इन बयान देने वालों पे जो ये गरिमा की बातें करते हैं। अरे भैया, मर्यादा है, तभी आपकी बात मानकर किसानी आंदोलन को उस फिलहाल वहां से सभी किसान अपने घर वापसी करी है। ये गरिमा थी ना? तो आपने क्या दिखाया? आपने आज तक एमएसपी को गारंटी किया तो बताइए, नोटिफिकेशन दीजिए। ये किसान है, ये बातों में नहीं आता, जुमलों में नहीं आता, इसका हल निकाल के दीजिए ना। कुछ नहीं कर सकते। ये भाजपा वाले सिर्फ बातें करते हैं, झूठ बोलना जानते हैं। सच के आधार पर तो इनके पास कोई वाक्य ही नहीं है बात करने की। जी प्रणव जी, लेकिन ऐसे करने से जो भारत की जो दूसरे देशों की इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं भारत के दूसरे देशों के साथ, ऐसा हो के कि पीएम नरेंद्र मोदी पीएम को ऐसे 15 मिनट तक रोका जा सकता है, वो भी ऐसी वजह से, ऐसी बाबत के लिए, क्या इंटरनेशनल रिलेशन ऊपर इसके कैसे प्रभाव पड़ सकते हैं? वो नहीं सोचना चाहिए था? देखिए, अगर आप हमसे बात कर रहे हैं कि सोचना चाहिए, तो सबसे पहले जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी जो प्रधानमंत्री मोदी की है, ये तो उनको सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र आज भी जीवित है। जिसको कुचलने का, जिसको मिधने का, मारने का काम, हर प्रयास
केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने किया है। लखीमपुर खीरी में क्या किया आज सभी जानते हैं। किसके बेटे ने किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचला, ये हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इनको। उसके बाद भी अगर इनका वही अंदाज और इनका वही अहंकार है जो टूटना नहीं चाहता है, तो किसान अपनी बात कैसे सुनाएगा। मैं समझता हूँ जो किसानों ने किया हमारा अंदाजा है, हमारे सर माथे पर है, क्योंकि वो हमारे सिर का ताज है। जो उन्होंने किया आज की वर्तमान स्थिति को देख के किया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ गिरगिट की तरह रंग बदलते आए हैं। क्योंकि आज गिरगिट की तरह रंग बदले, तो पंजाब की पहले याद नहीं आई। 5.25 साल कहाँ थे मोदी साहब, मेरा तो सीधा सवाल है। और आज 5.25 साल के बाद क्या याद आया कि पंजाब की तरफ रुख कर लिया। इसलिए मैं तब भी बोलता हूँ, ये सिर्फ मतलब की राजनीति करते हैं, ये सत्ता की लालसा की राजनीति करते हैं। इसके अलावा केंद्र में बैठी मोदी सरकार को कुछ नहीं आता है। जी प्रणव जी, उनको मतलब की राजनीति ही करनी थी और गिरगिट की तरह अगर रंग ही बदलना था तो वो 3 कानून वापस ही क्यों लेते। मैडम ये 3 कानून भाजपा सरकार है ना। नहीं, ये 3 कानून वापस नहीं लिए, ये वापस दिलवाए गए हैं। और उससे जरा श्रेय तो ये विधानसभा चुनावों को जाता है, जो यूपी में है, जो पंजाब में आने हैं, जो आने वाले समय में गोवा में आने वाले हैं, जो आने वाले समय में उत्तराखंड में आने वाले हैं। इनको मालूम था कि अगर आज ये तीनों काले कानून ये वापस नहीं लेते, तो जिस तरह इनको पंजाब से वापसी करनी पड़ी है, उसी तरह उत्तराखंड से, गोवा से और यूपी से भी इनकी वापसी निश्चित थी। इसी के कारण इन्होंने ये काले कानून घुटनों के बल आकर वापस लिए हैं। जी प्रणव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। તો જેવી રીતે પીએમ મોદી જ્યારે આજે પંજાબના પ્રવાસે છે, આજે પંજાબમાં તેઓ રેલી કરવાના હતા, પરંતુ તે પહેલા જ પીએમ મોદીના કાફલાને 15 મિનિટ સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાયો છે। આગળ કિસાનો દ્વારા જે કાળા ઝંડા બતાવવામાં આવ્યા છે, જે બાદ તેમના કાફલાને 15 મિનિટ સુધી ટ્રાફિકમાં રોકાયો છે।